Good morning, students. Now let us move further in the chapter. So in plant tissues, we have done about meristematic tissues. Meristematic tissues were those which were made up of the cells which have ability to divide. They keep on dividing to form to increase the length of the plant, and somehow they also increased laterally also, sidewise also they increase, and they increase the girth of the stem also. सो दीज वर ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इनका बेसिक जो जनरल काम था वो लेंथ को ही इंक्रीज करना था, या जो थिकनेस है उसको इंक्रीज करना था. सो दीज वर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स. कुछ स्पेशल कुछ पर्पस नहीं है, सिर्फ लेंथ और डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए थे वो. अब व्हाट हैपन्स व्हेन दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, बिकॉज धीरे धीरे सेल्स ओल्ड होते जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी भी ओल्ड होती है तो उतनी एनर्जी नहीं रहती काम करने की. सिमिलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज समहाउ when they get older, they lose their ability to divide, and when they becomes mature and lose their ability to divide, then they turn into permanent tissues, and therefore permanent tissues are the tissues that are consisting of non-dividing cells. They are permanent, वो mature हैं, fully mature हैं, अब और further divide नहीं होंगे. And they are moreover specialized kind of tissues. कुछ special function करने के लिए ये tissue design होते हैं plants में. तो यहाँ से अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड की तरफ हम गए, बिकॉज दीज परमानेंट टिश्यूज आर एबल टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. दे हैव स्पेशल शेप, स्पेशल स्ट्रक्चर दे हैव. सो दैट मीन्स दे आर डिफ्रेंशिएटेड. डिफ्रेंशिएशन हमने पढ़ लिया था कि अनस्पेशलाइज्ड से स्पेशलाइज्ड होने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन. की पहले हम कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, बट लेटर ऑन लाइफ में हम डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, तो हम स्पेशलाइज कर रहे हैं अपने आप को. सो the changing of meristematic tissues to permanent tissues is called as differentiation. Next is the categorization of permanent tissues. Permanent tissues can be categorized widely into two categories. One is simple permanent tissue and other one is complex permanent tissue. सिंपल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि सिंपल टिश्यूज हैं. सिंपल क्यों, मतलब सब एक ही टाइप के सेल्स हैं, सेम इनका ओरिजिन है, सेम फंक्शन है. फंक्शन तो खैर इनका भी सेम होगा, बट सेम स्ट्रक्चर है, सेम ओरिजिन है इनका, बेसिकली सेम शेप है. और कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ टिपिकल है, कुछ डिफरेंट है. तो these complex tissues are consisting of different kind of cells. They are different in appearance, different in structure, even though they keep on doing same work. एक ही टाइप का काम वो सब पकड़ लेते हैं और एक ही टाइप का काम करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, in this complex tissues we have two more categories further. One is xylem and other is phloem. P for phloem, ph for food की f की sound आती है, तो phloem और ये food. तो phloem are the special tissues that transport food in the plant body, and xylem are the tissues that transport water inside the plant body. So next is, xylem and phloem were these two complex tissues. Why these are complex? Because xylem and phloem are themselves further consisting of some more kind of cells. They both are consisting of 4 type of cells that we will be doing later on. तो ये चारों सेल जो हैं, इन दोनों में, इसमें भी 4 सेल हैं और इसमें भी 4 सेल हैं. इन दोनों के केसेस में इन सेल्स की अपीयरेंस क्या है, आपस में हर सेल की अपीयरेंस डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट टुगेदर व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दिस टिश्यू xylem and phloem, they all work together and they work for the transportation of water and food inside the plant. So that is why they are called as complex tissues. Function is same but structure is different. Here function as well as structure is same. So simple kind of this permanent tissues can be further categorized into 2 more categories. A lot of categorization is there. Protective tissues, protective simple tissues, and supportive या supporting permanent tissues. Protective में हमारे पास epidermis आती है, जो outer layer होती है हर रूट की, लीफ की, जो भी स्टेम होती है उसकी आउटर स्किन जो है मेन, वो एपिडर्मिस कहलाती है. एपिडर्मिस में क्या होता है, बहुत फ्लैट से क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स लाइक होते हैं. तो दिस इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस होती है लीव्स के अंदर जैसे, और बीच में स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है. तो अभी हम ये करते हैं एपिडर्मिस की डिटेल भी. एंड अदर इज बार्क और कॉर्क. जो टिश्यूज, जो सेल्स ओल्ड हो जाते हैं तो वो बार्क और कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं. डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट आर बेसिकली
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांट, जो भी उसको गर्थ प्रोवाइड करते हैं बार्क और कॉर्क, और मोर ओवर ये जितने भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल अटैक है उससे प्रोटेक्ट करके रखती है बार्क और कॉर्क इनसाइड पोर्शन ऑफ द प्लांट को। नेक्स्ट सपोर्टिंग में हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा नाम के टिश्यूज़ हैं। तो इन 3 टिश्यूज़ को अभी हम डिस्कस करते हैं। ये तीनों ही सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है या सीड को हार्डनेस प्रोवाइड करनी है, या फ्लेक्सिबिलिटी है, या क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो क्लोरोफिल प्रेजेंस होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम करके प्लांट को फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सो दीज 3 काइंड ऑफ टिश्यूज हेल्प इन सपोर्टिंग द प्लांट मैकेनिज्म। प्लांट का जितना भी फंक्शन है उस सबको सपोर्ट करने के लिए तीनों टिश्यूज इकट्ठे काम करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस होल प्लांट टिश्यूज। बेसिक डिवीजन कैसे कैसे है, किन किन कैटेगरीज में कैसे डिवीजन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल अबाउट एपिडर्मिस, बार्क, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। ये अब हम डिस्कस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एपिडर्मिस फर्स्ट। सो दिस इज डायग्राम ऑन पेज नंबर 70। हेयर यू कैन सी द सेक्शन ऑफ अ स्टेम। सेक्शन ऑफ अ स्टेम में ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब जैसे आपने स्टेम ली और उसको आपने यहाँ से कट कर दिया, हॉरिजॉन्टल आपने यूं कट कर दिया आपने हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर आप स्टेम को वर्टिकल अलोंग द लेंथ उसको कट करोगे तो दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बुक का पेज लिया, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा सीधा बीच में से कट कर दूँ ऐसे, तो दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर मैं इसको आधा ऐसे कट कर दूं तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, लाइक यू डू इन कटिंग दिस टोमेटोज एंड लेमन, you can slice it anyway, either you cut it transverse or either you cut longitudinal. You see the different arrangement, आपको सीधी सीधी एक ही टाइप की अरेंजमेंट नहीं दिखती, आपको अलग से ही दिखता है दोनों के टाइम पे स्ट्रक्चर। तो वही दोनों अरेंजमेंट को that is shown in transverse and longitudinal sections in a different way. So this is epidermis. Epidermis, like I have already told you, that this is the outer layer of all the parts of the plant. Epi means जो ऊपर है, और derma related to या dermis related to skin, तो जो skin के ऊपर वाली layer है that is called as epidermis. And you can see one thing above this epidermis, there is one more layer which is called as cuticle above this layer. Cuticle is basically a layer which prevents the entry of water inside the cells, which is a waterproof layer. So वो water या जो भी बाकी substances हैं उसको enter नहीं करने देती cell के अंदर. So this is cuticle layer. So this epidermis layer, if you see very close to it, this consists of large number of flat shaped cells and which are very closely packed with each other. तो ये आपके एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है इस तरह से, और बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं होते इन सेल्स के बीच में, फ्लैट सेल्स की फॉर्म में चलते रहते हैं ये। और इन एपिडर्मिस को हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपका अपर एपिडर्मिस हो गया जिसके ऊपर क्यूटिकल नाम की एक वाटरप्रूफ लेयर हो गई जो एंट्री वाटर की प्रिवेंट करती है, एंड लोअर एपिडर्मिस लीव में या जो ग्रीन लीव्स होती हैं बेसिकली और जो स्टेम में होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में बीच बीच में स्टोमेटा होते हैं। यू कैन इमेजिन दिस अरेंजमेंट लाइक इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ केक, तो केक में डिफरेंट लेयर्स हैं आपके पास, एंड यू कैन पुट कैंडल इनसाइड इट। तो ये जो कैंडल है ये ओपनिंग बनाएगी लेयर्स के बीच में, और वो जो ओपनिंग है दैट एक्ट्स एज स्टोमेटा। तो डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे पास, और उन डिफरेंट लेयर्स के बीच में डिफरेंट सेल्स हैं हमारे पास, और यहाँ लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमेटा है विच इज़ मेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड फ्रॉम वेयर ट्रांसपिरेशन एंड प्लांट्स टेक प्लेस. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ epidermis and it contains stomata. The function of stomata I have already discussed. So जो epidermis है उसके फंक्शन क्या हैं? epidermis क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करती है,
तो वो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करती है और वाटर की एंट्री को चेक करती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस. तो इन दिस वे इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यूज. जो भी इसके नीचे टिश्यूज प्रेजेंट है, आगे जो भी इनके टिश्यूज प्रेजेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है ये ओवरऑल एपिडर्मिस. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस बार्क. तो बार्क या कॉर्क पढ़ने से पहले एक बार हमें जाइलम और फ्लोएम पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो जाइलम और फ्लोएम है इनको हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं. ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़. तो जब ये वेस्कुलर टिश्यूज़ जब ये ग्रो करने लग जाते हैं, ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं, तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंड लेवल की ग्रोथ इनमें शुरू हो जाती है. और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं ओल्डर रूट्स या स्टेम्स के अंदर, जिससे जो आउटर एपिडर्मिस होती हैं, एपिडर्मिस की लेयर होती हैं, वो क्रैक होनी शुरू हो जाती है. उन पर प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग एंड रप्चरिंग. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स जो होते हैं वो एक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज पेरीडर्म. पेरीडर्म नाम की प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप कर लेते हैं. क्यों? ताकि जो जाइलम और फ्लोएम अपनी ग्रोथ के टाइम पे वट एवर प्रेशर दे आर एक्सर्टिंग ऑन द एपिडर्मिस, सो द प्लांट पार्ट दे कैन कोप अप विद दैट. टिश्यूज़ जो हैं रूट और स्टेम में वो कोप अप कर सकें उसको, उस डैमेज को. तो जो पेरीडर्म की लेयर है, उस पेरीडर्म की आउटर पार्ट को, आउटर जोन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं. तो कॉर्क सेल, ये बहुत डिटेल था उसका कि कॉर्क है क्या एक्चुअली. ये अभी हम डिटेल में और बाद में करेंगे इसको, बट अभी हम एक जनरलाइज व्यू ले लेते हैं कॉर्क का. कि कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, मेन थिंग क्या है कि दीज सेल्स आर डेड होते हैं. और डेड सेल्स आर बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, सपोर्ट, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन. And next is, second thing is they do not have intercellular spaces just like your epidermis. closely packed होते हैं, compactly packed होते हैं. और एक वैक्सी कोट होती है इनके ऊपर. जैसे एपिडर्मिस में क्यूटिकल नाम की एक लेयर थी ऊपर, यहाँ पर एक वैक्सी कोट होती है विच इज़ कॉल्ड एज सुबेरिन. सुबेरिन नाम की एक लेयर होती है. और वो क्योंकि ये लेयर वैक्सी होती है, तो उसी वजह से जो भी वाटर की एंट्री है, जो पैथोजेंस की एंट्री है, वो चेक करता है ये सुबेरिन नाम का लेयर. तो कॉर्क जो है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रोटेक्ट से प्लांट बॉडी को बचा के रखती है, या मैकेनिकल इंजरी है उससे बचा के रखती है. तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो कॉर्क है, इसको हम शॉक एब्जॉर्बर्स, या जो स्पोर्ट्स के जो गुड्स होते हैं, जैसे आपने शटल कॉक के नीचे देखा होगा कॉर्क लगी हुई होती है, क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए, या लॉन्ग लाइफ हो जाती है उसकी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट मटेरियल भी है. सॉफ्ट और साथ साथ थर्मुलेटिंग, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसमें, प्रेशर को बेयर कर सकता है, लाइट इन वेट होता है. तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से कॉर्क जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हम डिफरेंट टाइप की चीज़ों में, दैट आर बेसिकली स्पोर्ट्स गुड्स. जो भी स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं उनमें ज़्यादा यूज़ करते हैं हम कॉर्क मटेरियल को. सो दैट वाज ऑल बेसिक अबाउट एपिडर्मिस एंड कॉर्क. नाउ लेट अस कम टू द मेन सपोर्टिंग जो टिश्यूज़ हैं उन पर आते हैं हम. दैट इज़ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सो लेट अस स्टार्ट विद पेरेन्काइमा फर्स्ट. सो पेरेन्काइमा टिश्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ये आपका पेज नंबर 70, सिंपल परमानेंट टिश्यू. अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल दैट फॉर्म बेसिक पैकिंग टिश्यू. पैकिंग टिश्यू मीन्स कि कुछ स्पेशलाइज टिश्यूज़ के बीच में जो जगह फिल करनी होती है, उसको फिल करने के लिए पेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो पैक कर रहा है मटेरियल को, सेल के टिश्यूज़ के अंदर वाले टिश्यूज़ के आसपास के मटेरियल को, वैकेंट स्पेस को. तो पेरेन्काइमा इज़ since it's a big packing tissue, so it is present everywhere, almost everywhere inside the plant. like roots में भी है, stem में भी है, leaves में, flowers में, fruit में, हर जगह present है ये parenchyma tissue. So it's a permanent tissue. These are the properties of permanent tissues. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. Cell walls जो होती हैं बहुत thin होती हैं. Like thin cell walls, you can see from this also कि these are the very thin cell walls. Along with that, some intercellular, दो cells के बीच का cellular space you can also see. This is the intercellular space. जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज आपको पता ही है एक स्टार्ची मटेरियल है. तो दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. या फिर कैल्शियम पैक्टेट जो एक ग्लू का काम करता है, तो उससे बनी हुई होती हैं इसकी सेल वॉल. अब इसमें क्या है, एक बहुत प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है. ये जो सेक्शन है दैट इज़ बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल कट किया हुआ सेक्शन है, एंड दिस इज़ वर्टिकल सेक्शन.
आपको यही सेल्स वर्टिकल कट करे हुए दिख रहे हैं। तो इसमें आपको न्यूक्लियस प्रॉपरली दिख रहा है। जो ब्लू स्टेन्ड है ये न्यूक्लियस है, बहुत प्रोमिनेंट सा न्यूक्लियस होता है। एक बहुत बड़ा सा आपको वैक्यूल भी दिखेगा, साइटोप्लाज्म में अच्छा खासा प्रोमिनेंट वैक्यूल भी है इसके अंदर। जो सेल्स हैं इसमें वो लिविंग सेल्स हैं, और जितने भी प्रोसेस हैं, जो भी फंक्शंस, जो भी डेली लाइफ, डेली मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, दैट दी सेल्स कैन परफॉर्म। सो जो शेप है इन सेल्स की वो ओवल या फिर एलोंगेटेड या रेक्टेंगुलर, कुछ भी शेप हो सकती है। और कहाँ कहाँ मिलता है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हर जगह ही है प्लांट में। जो भी पैकिंग टिश्यू की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑलमोस्ट हर जगह ही प्रेजेंट है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एटसेट्रा हर जगह ही प्रेजेंट है। So next come to this portion again. This tissue provides support to the plant and also store food. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉर्न लूँ, मक्की का दाना अगर मैं कंसिडर करूँ, तो उसमें यहाँ सेंटर में एम्ब्रियो है अगर, तो यहाँ सारा आपका ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो ये फूड भी स्टोर करता है एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। तो इस तरह से जो आपका पैरेन्काइमा है दैट स्टोर्स फूड ऑल्सो। In some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis. तो फूड मेकिंग प्रोसेस में भी काम कर रहा है। एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लोरेन। क्लोरोफिल की वजह से ये क्लोरेनकाइमा एक स्पेशल केस हो गया। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये स्टोरेज कर लेते हैं गैस को स्टोर कर लेते हैं। तो वो एयर कैविटीज़ बन जाती हैं उनके अंदर, और एयर कैविटीज़ बनने की वजह से वो जो टिश्यूज़ हैं वो हल्के हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट फ्लोटिंग। बायंसी प्रोवाइड करते हैं, फ्लोट करने की एबिलिटी हो जाती है टिश्यूज़ में। सो ड्यू टू दैट to the plant help them to float, such a parenchyma tissue parenchyma type is called as air fill होने की वजह से they are called as parenchyma tissue. The parenchyma of stem and roots stores water and nutrients. So this was the function of this parenchyma tissues. So next tissue what we are going to discuss is collenchyma tissue. The flexibility in plants is due to another permanent issue कि leaves जो branches के साथ कभी कभी bend हो जाती हैं टूटे बिना. So that is the flexibility of plants actually. तो that is provided by collenchyma type of tissue. It provides mechanical support to the plants. We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. जो लीफ की जो स्टॉक्स होती हैं, जो उनकी स्टेम्स साथ में अटैच्ड होती हैं एपिडर्मिस के साथ, वहाँ पे भी ये टिश्यू मिलता है. द सेल ऑफ दीज टिश्यूज आर लिविंग, एलोंगेटेड और इरेगुलरली थिकन होते हैं एट द कॉर्नर्स, और बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनके बीच में. तो ये एक थ्योरी है अभी. अब हम ये देखते हैं कि जो आपके ये टिश्यूज़ हैं ये बने कैसे. तो यूजुअली क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आपके, जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू था, ये कहाँ से आया? ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आया. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिनकी बहुत थिन सेल वॉल थी, दे गेट कन्वर्टेड टू पैरेन्काइमा टिश्यूज़. और पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जिसमें कुछ एक्स्ट्रा डिपोजिशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो दैट दे गेट कन्वर्टेड टू कॉलेनकाइमा टिश्यूज़. तो वो जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन है पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में कुछ टाइम के बाद जो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, तो दीज एक्स्ट्रा डिपोजिशंस दैट लीड टू द changing of parenchyma tissues to collenchyma tissues. So this is how these collenchyma tissues come into existence. So here you can see the structure of these collenchyma tissues. ये थोड़े से elongated होते हैं, थोड़े से खिंचे हुए होते हैं ये सेल्स. यहाँ ये आपका इसमें सेल्स में न्यूक्लियस है, और ये जो रेड कलर का सारा दिख रहा है ये वॉल थिकनिंग्स है, डिपोजिशन है, एक्स्ट्रा डिपोजिशन है इस जो कॉलेनकाइमा के सेल्स हैं उसके अंदर. बीच में एक वैक्यूल है यहाँ पर. इन सेल्स में जो आपस में सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो वॉल थिकनिंग्स हैं वो उस स्पेस को कम कर रही हैं. और ये जो वॉल थिकनिंग्स है कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है इनका, ये इरेगुलर पैटर्न में अपने आप को एक्सटेंड कर लेती हैं. लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है और वॉल थिकनिंग अनयूजुअल हैं, सेल्स जो है वो एलोंगेटेड हैं. तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज collenchyma cells. Next is their function. They provide flexibility as we have already discussed. बेंडिंग जो होती है प्लांट में उसको सपोर्ट करता है ये, बिना टूटे जो स्टॉक्स हैं वो सस्टेन कर पाएँ, रह पाएँ. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. सो सिमिलरली इसी डायग्राम को हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यहाँ पे शो कर दिया है, वॉल थिकनिंग्स एंड ऑल दैट वी हैव शोन हेयर. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा. परमानेंट टिश्यू कैटेगरी में इट इज़ अ टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ.
तो जो स्क्लेरेनकाइमा वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम हार्ड जो है, इनको हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। स्टोन सेल्स क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हार्डनेस ये प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ या रिजिडिटी या स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। जैसे इसमें हस्क के बारे में बताया हुआ, जो कोकोनट की आउटर ब्राउन कवरिंग होती है, दैट बेसिकली कंटेन्स, that is sclerenchyma tissue. The cells of tissues are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. जो लिग्निन है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जो सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो मेन सेल वॉल होती है, उसके अराउंड डिपोजिशन बनानी शुरू कर देता है। एंड दिस लिग्निन एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस और हार्ड कर देता है सेल वॉल के अराउंड वाले एरिया को। तो सेल वॉल इतनी थिकन होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू दिस लिग्निन नेम्ड कंपाउंड। ये एक केमिकल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पॉलीमर्स आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि पॉलीमर होता है, तो उसी टाइप का ये एक पॉलीमर लाइक सब्सटेंस होता है। तो इसके डिपोजिशन की वजह से सेल के बीच का जो सारा पोर्शन होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है और सेल वॉल थिक हो जाती है। देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, बहुत नैरो स्पेस हो जाता है, लगभग ना के बराबर। द टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टेम ऑब्वियसली टू प्रोवाइड दिस स्ट्रेंथ अराउंड वस्कुलर बंडल, साइलम और फ्लोएम टिश्यूज के अराउंड या वेन्स ऑफ द लीव्स के अराउंड या हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, जैसे वॉलनट जो है दैट कंटेन्स स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। बिकॉज मेन फंक्शन क्या है इसका? स्ट्रेंथ। जहाँ पे भी हार्डनेस है प्लांट के अंदर वहाँ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा ही होगा। सो लेट्स हैव अ look at the sclerenchyma tissue transverse and longitudinal section. So this is transverse section and this vertical, this is longitudinal section. So here you can clearly see that these are the lignified cell walls. So this is primary cell wall and this is secondary cell wall due to the deposition of lignin named compound. And this region where there is no lignin deposition, this is called as simple pit pair. यहाँ पे pits बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे लाइक अरेंजमेंट हो जाती है, जिसको हम सिंपल पिट पेयर बोल देते हैं। और ये वर्टिकल सेक्शन में अगर आप देखो तो ये नैरो ल्यूमेन है, बीच का पोर्शन बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है, यहाँ पर नैरो ल्यूमेन है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन इन दिस सेल। सो दिस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज बेसिकली ग्राउंड टिश्यू। ये स्पेस फिल करता है inside the plant body and give the shape and internal support to it. So with this we have completed the 3 kind of permanent tissues which were supporting in nature: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So students, now we are able to describe the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So first point is living cells and isodiametric. Same shape होती है, living cell है, but यहाँ पर sclerenchyma में dead cells हैं with thick corners due to the deposition of lignin. थोड़ी सी walls के around lignin deposition होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर long and narrow tapered ends है. So let us see, check out this structure of cells in all the 3 cases once again. So this was all about parenchyma. Isodiametric सब लगभग सेम होते हैं, न्यूक्लियस बहुत क्लियरली प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल दिख रहा है आपको, और कहीं कोई लिग्निन डिपोजिशन नहीं है, बहुत थिन वॉल्स हैं। दिस इज़ योर कॉलेनकाइमा। थोड़ी थोड़ी लिग्निन डिपोजिशन शुरू हो गई है यहाँ पर, न्यूक्लियस फिर भी अभी दिख रहा है, सेल्स यहाँ पे भी लिविंग है अभी। बट जो आपका पैरेनकाइमा था, पैरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा लिग्निन डिपोजिशन हो गई और सेल टेपर्ड होने शुरू हो गए। थोड़े टेपरिंग मीन्स थोड़ा कम होना लग गया उनका डायमीटर अराउंड द कॉर्नर, जैसे ये है टेपर्ड एंड्स, तो साइड से थोड़ा सा नैरो होने लग गए, कटने लग गए, टेपरिंग होने लग गई। तो ये स्ट्रक्चर है पैरेनकाइमा का। तो फर्स्ट पॉइंट वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट इज सेल वॉल थिन है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल्स थोड़ी सी थिक हैं कॉर्नर्स पे एंड एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन एक बाइंडिंग ग्लू लाइक होता है प्लांट्स और फ्रूट्स के अंदर, और सेल्यूलोज और पेक्टिन दोनों से मिलके बना हुआ है इसका जो सेल वॉल है। सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ एक लिग्निन की डिपोजिशन भी शुरू होने लग जाती है, जिसको हम सेकेंडरी सेल वॉल भी बोल देते हैं। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस गायब सा ही दिखता है हमें यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, distinct nucleus, dense cytoplasm, and this have do not nucleus and cytoplasm, क्योंकि lignin deposition इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि lignin itself start forming bundles, तो nucleus और cytoplasm गायब होना शुरू हो जाता है। Next is its main function is storage of food waste product and form packing tissue. Next is सारे soft parts में यहाँ ये present है, what it gives कॉलेनकाइमा में मैकेनिकल सपोर्ट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो लीफ बेंड हो सके विदाउट ब्रेकिंग, सो दैट इज़ ड्यू टू कॉलेनकाइमा। और यहाँ पर है
कि इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जैसे हमने कोकोनट हस्क की बात करी थी कि वो टिश्यूज़ जो स्क्लेरेनकाइमस टिश्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप उसको निकालने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दैट इज़ कि जो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज़ है वो बहुत टाइटली पैक्ड है यहाँ पर, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है। नेक्स्ट इज इट इज़ प्रेजेंट इन जाइलम फ्लोएम, जो भी हम करेंगे। इन द शेल्स ऑफ नट्स लाइक वॉलनट हमने डिस्कस किया था। हार्ड सीड एंड पल्प ऑफ पियर, पियर जो है उसमें क्रंचीनेस थोड़ी सी रहती है, आप एकदम से सॉफ्ट फील नहीं करते उसको च्यू करते हुए, थोड़ा सा क्रंच रहता है उसमें। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमस टिश्यूज। So students, based upon this point, we can have two questions like why it is difficult for us to pull out the husk of coconut, because it is answer is because coconut husk is made up of this sclerenchyma tissues, and these fibers are very well attached to each other. Next is why crunch is felt when we chew pear due to the presence of sclerenchyma tissues. That's it.